Hello students, welcome back to my channel. Today we'll talk about characterization of problem soil. Before we start our lecture, let me tell you we have already uploaded more than 290 lectures in our YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, then check them out. If you like our effort, then do subscribe to our channel. So let's start characterization of problem soil. Characterization of problem soil. So what we will understand about problem soil. What is problem soil? Problem soil is any soil that hinders crop growth and we need certain special management to improvise the soil for an efficient crop management, for an efficient crop growth and management, right? So there are different types of problem soil. If we classify them, they are something like based on their pH. Based on their pH, they are classified as acidic soil, saline soil, saline sodic soil, sodic soil. Sandy soil. So why I classified them as problematic soil? If we see extreme sandy soil, like in desert, extreme. Here word come extreme sandy soil. Then what happens? Nutrient retention. There is low moisture retention, so that might hamper the crop production. So here I categorize them into problem soil. Remember the word term extreme. Okay. So sandy soil, that is extreme form of sandy soil. Then clay soil, extreme form of clay soil. Again, here there is poor aeration, there is waterlogging situation, and there is more penetration resistance. So these are becoming the problem soil. Then some infertile land where fertility level is less. Infertile lands, they are also, there may be deficiency of nutrient. You can find deficiency of nutrient, then deficiency of low in organic matter. Okay, if that will be low in organic matter, then there will be less micro and macroflora and fauna will be there. So they hamper the nutrient dynamics of that soil. Okay, so that might be the problem soil, considered as problem soil. Then based on water availability, arid soil, another is waterlogged soil. अगर कोई भी सॉइल में एकदम पूरा ड्राई रहता है वो सॉइल, ओके, देन दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज प्रॉब्लम सॉइल. एंड अगेन कोई भी सॉइल अगर एक्सट्रीम वेट रहता है, वाटर लॉग्ड रहता है, तो दैट मे बी कंसीडर्ड एज प्रॉब्लम सॉइल. बेसिकली वी व्हाट वी स्टडी as problem soil as our based on pH, that is acidic, saline, sodic and sodic soil. Okay, so we will talk only on this topic. We will not study this topic because these are not actually important for exam point of view. This is important from exam point of view. So we will focus on this based on pH, what are the problem soils. Okay, so we will characterize these problem soils, right, based on pH, based on EC, based on ESP, based on SAR. Okay, what are these terms? pH means negative logarithm of hydrogen ion concentration. Okay, जितना भी सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम. दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है सॉइल सॉल्यूशन में, देन आवर पीएच विल गो डाउन 1 यूनिट, दैट इज माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. इसी क्या है, व्हाट इज इसी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल. सॉइल में अगर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है,
soluble salt content, then the conductivity will increase, then the EC will be higher, and it is expressed in डेसिसीमेन पर मीटर और मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर यूनिट। ओके, इसको भी याद रखना है आपको। पीएच का जो रेंज है 0 to 14 है, ये मैंने पहले क्लास में भी बताया था। देन ईएसपी, दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जो क्ले रहता है उसका जो क्ले कॉम्प्लेक्स रहता है, वहां पे जितना भी कैटायंस रहते हैं उनमें से सोडियम का परसेंटेज कितना है, राइट? सोडियम का परसेंटेज divided by total cation exchange capacity into 100, that is exchangeable sodium percentage, यानी सोडियम सैचुरेशन उस सॉइल में कितना है। देन SAR, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस मैग्नीशियम 2+ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज SAR, राइट? सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। These are interlinked. ESP and SAR, they are interlinked, they are linear, their relationship is linear, remember. Okay, so based on these characteristics we will classify these soils. Okay, so अगर हम एसिडिक सॉइल देखेंगे तो वहां पे pH कितना रहता है? pH जो है वो रहता है लेस देन 7। ओके, एसिडिक सॉइल में pH रहता है लेस देन 7। सलाइन सॉइल में pH रहता है 7 to 8.5। ओके, सलाइन सोडिक सॉइल में पीएच रहता है ग्रेटर देन 8.5। लेकिन सलाइन सोडिक में जो पीएच या फिर जो भी पैरामीटर हम देखेंगे वो बेस्ड ऑन कितना वहां पे सॉल्युबल सॉल्ट रहता है एंड कितना वहां पे सोडियम की, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रॉब्लम दिखाया जाता है। तो कितना एक्सटेंट में दिखाया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कि पीएच कितना रहेगा और जो है इसी कितना रहेगा, एसएआर कितना रहेगा। क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे डिफरेंट कहीं पे ग्रेटर रहता है, कहीं पे लेस रहता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो सलाइन सोडिक सॉइल का वहां पे ऐसा ही देखना पड़ेगा आपको, कंसीडर करना पड़ेगा। देन सोडिक सॉइल में जो है पीएच कितना रहता है? यहाँ पे ग्रेटर देन 8.5 रहता है सोडिक सॉइल में पीएच। देन कम्स टू ईसी। ईसी जो है एसिडिक सॉइल में लेस देन 4 डेसिसीमेन पर मीटर रहता है। ईसी एसिडिक सॉइल में लेस देन 4 डेसिसीमेन पर मीटर रहता है, क्योंकि वहां पे सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट जो है कम पाया जाता है। देन सलाइन सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ईसी ग्रेटर देन 4 डेसिसीमेन पर मीटर रहता है। देन अगर हम बात करेंगे सलाइन सोडिक सॉइल में, देन अगेन देयर विल बी ईसी ग्रेटर देन 4 डेसिसीमेन पर मीटर। अगेन मैं जैसे बताया आपको कि वहां पे कितना एक्सटेंट में सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट है। अगर सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट सोडियम कंटेंट से कम है देन वहां पे ईसी will be less than 4 डेसिसीमेन पर मीटर। देन सोडिक सॉइल में ईसी जो है लेस देन 4 डेसिसीमेन पर मीटर रहता है, क्योंकि सोडिक सॉइल में जो है सोडियम परसेंटेज ज्यादा है लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट वहां पे कम है। देन अगर हम बात करेंगे ईएसपी की, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कहां पे लिखूं? ओके, उसको वाइप आउट कर देता हूं। ओके, सो पीएच एंड ईसी हम देख लिए। देन बेस्ड ऑन ESP, of course, there will be in acidic soil that will be less than 15. In saline soil, it is less than 15. In saline sodic soil, it is again greater than 15. But as मैंने बताया कि उसका extent के ऊपर डिपेंड करता है। Then in sodic soil, it is greater than 15. Okay. Then SAR का वैल्यू अगर देखेंगे तो SAR less than 13. SAR less than 13 बिकॉज यहाँ पे जो सोडियम का SAR ESP रिप्रेजेंट सोडियम कंसेंट्रेशन, राइट? तो ESP में जो है सोडियम कंसेंट्रेशन बेस्ड ऑन टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बट SAR में जो सोडियम कंसेंट्रेशन है वो एक रिलेटिव टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे नॉलिफाई द सोडियम effect of sodium, right? And sodium also nullify the salinity effect of calcium and magnesium, so they are represented as SAR, sodium absorption rate. And saline sodic soil में जो है SAR will be greater than 13 and sodic soil में SAR will be greater than 13. So this is the characterization of our problem soil. Okay, they are generally asked in different competitive exam. Okay, so you can note them down. What is problem soil? What are the types of problem soil? Then based on pH, what are the categories of problem soils?
देन उनका जो कैरेक्टराइजेशन बेस्ड ऑन पीएच, ईसी, ईएसपी, एसएआर एंड इनका जो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मीनिंग क्या है पीएच का, ईसी का मीनिंग क्या है और कैसे उसको मेजर करना है, देन ईएसपी का मीनिंग क्या है, एसएआर का मीनिंग क्या है, इनका यूनिट क्या है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है इस टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर कोई भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एग्रीकल्चर Q&A, वहां पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम ट्राई करते हैं कि कुछ मॉक टेस्ट सीरीज ये हमारे ग्रुप में हो या फिर यूट्यूब चैनल पे हो, हम अपलोड करते रहते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लैरिटी होता रहेगा। अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट करते हैं तो हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके हमारे चैनल का इन्फो अपना फ्रेंड्स और जूनियर के साथ शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा एंड हमारा जो गोल है वो फुलफिल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।